हेलो। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज का विषय है सिंपल पीपल विथ सिंपल माइंड एंड सिंपल सोच, व्हाई दिस पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, अदर पीपल टेक दिस पीपल एज ग्रांटेड, व्हाई। On this matter I will share my opinion, discussions and everything. I will do share my feelings and opinions, my observation, my views from my life also, and whatever I see around me. अगर कोई इंसान बहुत सिंपल है, बहुत सहज सरल है, उसका मन, उसका विचार, उसका थॉट्स बहुत सिंपल है, अटैक होगा, हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। सम ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर एक्सप्लॉइटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। और आजकल तो ये ज्यादा दिखाई देते हैं चारों ओर, हमको भी दिखाई दे रहे हैं। पीपल हु आर वेरी गुड, पीपल हु आर वेरी सिंपल, people who do not poke nose to others life, people who never done any wrong things to other people, people who are self-centered, they love to be within their life, they are involved with their own life, with their own feelings, with their own life and with their own everything. Some people, without any reason, intentionally, without any reason mainly, they destroy and exploit the life of this good people. Why? My question is why. It's very difficult. I accept this कि आज के दिन, इस जमाने में, इस टाइम पे, अगर कोई बहुत सिंपल, सीधा साधा, सहज सरल कोई व्यक्ति हो, it's very difficult for that particular person, he or she or any gender, it can be of person of any gender, to live on this earth in today's time. पहले तो ये नहीं होता था. माई एज इज 32. जब हम छोटे थे, बड़े हुए, एडोलेसेंस एज पास किए, टीनेज पास किए, बहुत साल पहले इतना तो बिल्कुल हमने नहीं देखा था. आई आई हम सभी लोग बहुत बहुत साल पहले, मतलब थिंक अबाउट 15-20 years बैक, 25 years बैक, people used to freely talk with other people. Trusting person was much easier in any aspect. Believing people, trusting people, mixing with the people, having friendship, chilling out with the friends, having a very chilled life. It was very good and safe life many years back. Think about 15 or 20 years back. कुछ सालों से, for about 5 or 6 years like that, within 5 या 6 साल के अंदर, back 5 to 6 years back, everything has changed. Everything has changed. The situation, the scenario, the society, I believe that जो भी चेंजेस सोसाइटी में आए हैं, चेंजेस इन एस्पेक्ट ऑफ बैड इंप्रेशन और बैड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, उसके हिसाब से there are many factors like ultra modern life, much competition and some negative forms. जो नेगेटिव एनर्जी, जो अल्ट्रा मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ नेगेटिव एनर्जीज का एंट्री हो गया है. वो नेगेटिव एनर्जीज के कारण से ये हो रहा है. आजकल तो हम देखते हैं कि रास्ते पे, किसी भी जगह पे, द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, इन दिस प्लेस मच, ये जगह पे तो बहुत होता है. पीपल, अदर पीपल, they look at the face, they do a kind of reading. I believe that they know how to read mind, how to read a psychology, and they deal with the people. ठीक है, अगर पॉजिटिव वे से तो ठीक है. क्यों क्यों एक सिंपल, एक सहज सरल व्यक्ति को ज्यादातर इंसान उसका फायदा उठाएगा?
क्यों उसको बिट्रे करेगा in any aspect? Why? I really don't understand this, and I'm very scared of not only myself, like, you know, I am scared, and I am worried, and I always think about other people also, who are there are people in this world even today in this Kali Yuga also, those who are very simple, those who are very sahaj, very very saral, and those people do not have much complex nature in their mind. होता है ना, जलेबी होते हैं, जलेबी होता है जो जलेबी हम खाते हैं, जो हमको मेला में बहुत जगह पे दुकान पे मिठाई की दुकान में मिलते हैं, जलेबी का जो शेप होता है वैसा ज्यादातर इंसानों का मन हो गया है आजकल. Again, I am not disrespecting, again I am not telling any name, I am not disrespecting, I just want to share my feelings just to create an awareness for all the human beings to be safe in this earth, to be safe in this on this earth, in this time, in this era, in this Kali Yuga. हम लोग सहज सरल इंसान है, हम लोग सिंपल मन सिंपल सोच से लाइफ लीड करते हैं. वी डोंट लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, वी डोंट लाइक कॉम्प्लेक्स पीपल, वी डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स माइंड, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग सिंपली लॉजिकली, simply. So we have to be safe, we have to create a very safe environment around us, we have to be in a very safe place, we have to be with the safe people always, we have to be in a safe zone always. Era, time, halat, situation, scenario of the world, scenario of the society, good bad सभी है, लेकिन बैड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इवन इन माई लोकल प्लेस ऑल्सो, जहां हम अभी रह रहे हैं, कुछ ना कुछ हम खरीदने जाते हैं, दे आर माई नोन पीपल, दे आर माई नोन पीपल. हम फूल खरीदते हैं या कुछ खाने का चीज खरीदते हैं या कुछ मिठाई खरीदते हैं, क्या कोई भी कुछ, मतलब यू नो एनी फूड और एनी आइटम्स जो हम खरीदते हैं मार्केट पे, दे आर माई नोन पीपल, नोन शॉपकीपर्स. सालों से आई एम स्टेइंग हियर फॉर 7 or 8 years. It's surprise. I get surprised to see their changes, like, you know, 10 रुपए 20 rupees ज्यादा ले लेते हैं. My question is that I know these people for number of years. How they can do to me? ठीक है, how they can do to me? तो अभी क्वेश्चन आएगा कि अभी जैसा दुनिया है, जैसा समय है, जैसा जैसा इरा, कलयुग इरा जैसे है, वैसे ही हम लोगों को होना है. वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, लेकिन इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे, ताकि कोई हम लोगों का नुकसान ना करे, ताकि कोई हम लोगों का कोई नुकसान ना कर दे. वी हैव टू सेव आवर लाइफ, वी हैव टू सेव आवर body, mind and soul, we have to save ourselves, we have to save our family, we have to save our everything, our property and everything. We have to save our spiritual inside power also, we have to save our soul and atma. But in the same time we have to be soft also, emotional also. We have to be like a coconut, as I said in one of my vlog. Again I am saying, कोकोनट का आउटर शेल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, इनसाइड सॉफ्ट होता है, पानी रहता है, सॉफ्ट जो जो इनसाइड का जो रहता है वो हम तो खाते हैं, और पानी भी हम इनसाइड पीते हैं कोकोनट की. तो वी हैव टू बी लाइक, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ लाइक अ कोकोनट, वी हैव टू बी. तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर. A person in his or her life, वो पर्सन उसको सभी काम आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. I am a not very good player, I am not a very good player, I cannot cook very well, I am not a famous singer, I am not a very meritorious student, I am not.
आई एम नॉट। आई वॉन्ट टू से दिस कि एक इंसान के अंदर भगवान हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज दे के मतलब इस दुनिया में सेंड किए हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज लेके। एवरी पर्सन आर डिफरेंट, एवरी पर्सन स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड टैलेंट्स आर डिफरेंट, एवरी पर्सन कैपेसिटीज एंड स्किल्स आर डिफरेंट, कैपेसिटीज एंड स्किल्स आर डिफरेंट। वी नो दैट एंड वी बिलीव दैट। फिर भी अगर कोई इंसान किसी नया चीज सीखने जाते हैं, कोई नया चीज सीखने जाते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम शेयरिंग दिस। उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए। गलती तो होगा ही, गलती बहुत बार होगा, गलती होगा तभी हम सीखेंगे, तभी हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई रियली डिसलाइक वन थिंग, दैट इज मेरे सामने कोई बैठा है, कोई इंसान, एक दो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर लुकिंग एट मी एंड दे आर लाफिंग एंड स्टेयरिंग एंड लाफिंग एट मी। क्यों? क्योंकि हम जो सीखने गए हैं वो थोड़ा हमको आते हैं, थोड़ा हम गलती कर रहे हैं। इन मेनी केसेस इट्स माई ऑब्जर्वेशन, स्मॉल चिल्ड्रन, कुछ लोग, कुछ इंसान दूसरे इंसान की तरफ देख के हंसते हैं, गिगल करते हैं, सामने ही हंसते हैं। अगर मुझे लगा कि सामने वाले इंसान की या इंसान का कोई गलती हो रहा है या उसका कोई कमी है, उसका कोई प्रॉब्लम है, मतलब whatever he is doing or performing or whatever he is saying or he or she is saying of any gender, that particular person, if I found some defects or problems in anything, जब समय आएगा, at proper time, proper place, at proper moment and situation, I will, depending on the person's attitudes and behavior, I will tell them in a different way कि इसको improve करो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। I always believe in this theory. My theories are totally different. I am leading a different life and I believe that I am leading a very perfect and good life, जो सबसे अलग है, सब इंसानों से अलग है। Yes, often I do judgment. Yes, often I become judgmental to other persons, but in a positive way always. I always follow proper moment, proper time, proper situation, proper place. Obviously, main factor is depending on that person whom I am going to give advice, whom I am going to say something about his कमी, his or her or any gender persons, any gender का हो सकता है, उसका कमी, उसके बारे में। Approach is very important. Approach is very important. Again, I'm saying. So, आजकल चारों ओर हम देख रहे हैं, कोई भी इंसान किसी भी इंसान को उतना दे दो, उतना सम्मान तो, रिस्पेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, सोचते ही नहीं है कि वो इंसान है। मुंह के ऊपर कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ भी बोल देते हैं। Why? My question is why? See, I believe that, I know that by being a single person, it's not that much easy nowadays to bring a big whole revolution in the society. It's not at all easy nowadays. I'm a spiritual person. I always involve myself in puja part. I do puja of Ma Vaishnavi and also some other gods and goddess. I know that I have shared to all my subscribers and viewers, but yes, I am taking steps slowly to my purpose of life, to my goal of life कि creating, पहला स्टेप ये हो रहा है मेरा कि to create awareness, to create a positive vibes and इसको spread कर दो, I'm trying to spread it everywhere.
through my vlog, through my Instagram, YouTube. पहला स्टेप मेरा चल रहा है creating awareness by giving informations, by sharing many stories, many happenings in my life experiences and feelings, whatever I feel surrounding, whatever I see. तो as a human being, as a बहुत साधारण इंसान, I have never taken any person granted. I have never taken any person granted for anything in my life. हर इंसान का कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर इंसान का कोई ना कोई खूबियां रहता ही है, कोई भी जेंडर का. इट कैन बी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ जेंडर्स, एनी काइंड ऑफ जेंडर. जो जो जेंडर हम जानते हैं सोसाइटी में है, आई रेस्पेक्ट ऑल जेंडर्स, आई लव ऑल जेंडर्स, एंड आई डू बिलीव कि कोई भी जेंडर हो, हर इंसान के अंदर भगवान रहता है. कोई भी इंसान के अंदर, कोई भी इंसान के मन में या भावनाओं में जब भी कोई अच्छा सोच आते हैं, थोड़ा अच्छा सोच आते हैं, थोड़ा अच्छा विचार आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट सुपर पावर, डिवाइन पावर जो उनके अंदर है ही ऑलरेडी फ्रॉम इनबॉर्न. बहुत दुख होता है, बहुत खराब लगता है जब हम खुद को कभी देखते हैं कि some known people or some people around me are taking me just for granted. बहुत दुख होता है, बहुत खराब लगता है, बहुत मन बहुत खराब हो जाते हैं जब किसी दूसरे इंसान को कोई दूसरा और इंसान छोटा करते हैं हमारे सामने. I really feel very bad, very I really feel very bad. And I really feel to do something against this, but हम सिर्फ बोल सकते, समझा सकते, और क्या कर सकते हैं, आप बोलिए. It's pathetic for me. It's very pathetic because I'm in a spiritual journey. इंसान को कोई कमी है, कोई गलती है, उसको समझाओ, उसको समझाने की तरीका है. गिगल करना, हंसना, सामने गिगल कर रहा है, सामने हंस रहा है. बहुत सारा एस्पेक्ट में, बहुत सारा लाइफ का फेजेस में मैंने ऐसा देखा है. माई एज इज 32. अगेन ऑफन कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स हम रिपीट कर लेते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आज चले आते हैं मुंह में. तो खुद को बहुत जगह पे हैरास होते मैंने देखा है. हैरास मतलब नहीं, कभी कोई इंसान मुझे अपमान किए हैं या फिर कोई इंसल्ट किए हैं, ऐसा कभी भी लाइफ में आज तक नहीं हुआ है भगवान के कृपा से. लेकिन हाँ, हंसे हैं कि ऐसा जमाने में, ऐसा कलयुग में, ऐसा दुनिया ऐसा टफ है, दुनिया ऐसा कठिन है, दुनिया ऐसा कंपेटिटिव है, दुनिया ऐसा है. तो इस दुनिया में तुम जैसे इंसान इतना सहज, इतना सरल, इतना सिंपल, तुम जिंदा कैसे रहोगे? How are you fighting in your life, with your life? How are you how do you overcome life challenges and problems? मतलब बहुत कुछ लोगों ने लाइफ में, कुछ लोग मुझे काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिए थे, एंड दे थॉट दैट कि क्या बोले, एक्चुअली दे took me, again I'm saying, as granted for. हाँ, मेरे सामने बहुत हनी जैसा बात किए, पीठ पीछे मेरे बारे में जो झूठ है, जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, जो झूठ है, जो फॉल्स है, वैसे बात किए. मेरे नोन पीपल को, कुछ नोन पीपल को ऐसे झूठ बात बोले मेरे बारे में. But again, by God's blessings, by God's grace, I am till today at my right place. And जो मेरा नोन पीपल है लाइफ में, जिन लोगों के साथ मेरा बहुत सारा सालों से अच्छा गुड रिलेशनशिप है,
they have never misunderstood me, and I believe and I know and I pray to God कि जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे they will never misunderstood me. लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है. So we must believe that हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर कर पाते हैं लाइफ में. देखिए, पढ़ाई करना, बहुत सारा हायर स्टडीज करना, नौकरी करना, जॉब करना, ये तो सभी लोग करते हैं दुनिया में. आज के जमाना, आज का दुनिया ऐसा जगह पे पहुंच गया है कि नो वन इज अनएडुकेटेड, नो वन इज अनएडुकेटेड. इवन जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जो बहुत अंडर पॉवर्टी लेवल, मतलब जो बहुत गरीब लोग होते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, बहुत सारा स्कीम्स होता है एजुकेशन स्कूल, एजुकेशन रिलेटेड, जो बहुत गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन देते हैं. आई थिंक इट्स अप टू 14 years. तो एजुकेशन के मामले में तो आज के जमाने में, दुनिया में, आई बिलीव दैट इन दिस होल वर्ल्ड कोई भी बच्चा अनएडुकेटेड नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा. तो एजुकेशन के मामले में, मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में, बेसिक जो फैसिलिटीज होता है, हर इंसान का बेसिक जो राइट्स होता है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सभी इंसान को मिलता है, सभी इंसान को मिलता है, सभी इंसान को ये आई बिलीव पूरा दुनिया में अवेलेबल है. ये जो बेसिक जो चीज होते हैं, बेसिक राइट, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो आज के दुनिया में कोई भी इंसान को, मतलब कोई भी बच्चा को, कोई भी इंसान, मतलब कुछ एज तक बेसिक कुछ फैसिलिटीज उनको मिलेगा ही. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन मेन. तो ये सब बेसिक चीज पाने के बाद आई बिलीव दैट कोई भी इंसान अनपढ़ या गंवार तो नहीं रहेगा. They will have some educations in their life, they will have some knowledge and good morality and educations obviously in their life, within themselves. तो फिर भी समाज के कुछ लोग हैं जो लोग दूसरे इंसान को वाई छोटे करते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं. वाई? दिस इज माई फीलिंग्स which I'm sharing in this vlog. So it's my handful request to all my viewers, to all my subscribers ki do not allow people to take you as granted. अगर आपके सामने दिखाई दिया कि और कोई लोग आपके सामने दूसरे लोग को छोटा कर दिखा रहा है या टेकिंग फॉर ग्रांटेड ऐसा फील करवा रहा है, प्लीज स्टॉप दैट, रेज योर वॉइस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, एंड छोटे छोटे स्टेप्स करके हम लोगों को यूनाइटेड होना है. ताकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किए है कि इस दुनिया में जब कोई बहुत बड़ा चेंज, जब कोई बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन, जब कोई बहुत बड़ा चेंज, जब कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आने का बात हो रहा है, तो छोटे स्टेप्स करके हम लोग को आगे बढ़ना है. छोटे स्टेप्स करके हम लोग को आगे बढ़ना है. ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, समाज में, इंसानों के लाइफ में. बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इंसानों के लाइफ में. हाउ टू डील विद द अदर पीपल, हम लोग कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे किसी को मोटिवेट करें, कैसे किसी को इंस्पायर करें, कैसे किसी को आगे बढ़ाते ले जाए, कैसे किसी को अच्छा रखे, कैसे पॉजिटिव वाइब चारों ओर छोड़ दे, कैसे चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब छोड़ दे, कैसे अपना शरीर, अपना मन, अपना आत्मा, अपना चक्रस, अपना ऑरा, इनसाइड आउटसाइड,
एवरीथिंग ठीक रखे, स्पिरिचुअली पॉजिटिव, डिवाइनली पॉजिटिव रखे, कैसे चारों ओर पॉजिटिव डिवाइनलीनेस हम स्प्रेड कर पाए। जो भी हम अभी बोले सब कुछ हम कर पाएंगे। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू, एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू। इस टाइम, इस युग में भी ये बात सच है कि रेवोल्यूशन ले आने के लिए, पॉजिटिव डिवाइन चेंजेस ले आने के लिए ऑफन, कभी कभी एक इंसान ही काफी होता है। एक इंसान, एक आदमी ही काफी होता है। कोई भी एक पर्सन काफी होता है। इट कैन बी ए चाइल्ड ऑल्सो। रेवोल्यूशन कैन बी ब्रॉट बाई अ चाइल्ड ऑल्सो, बाई एनी पर्सन ऑफ एनी जेंडर। अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर्सन है, and if that person want to do a very good thing for the society, for this world. हाँ, यूनिटी, यूनाइटेडनेस, ये तो जरूरी है ही। थिंक अबाउट बहुत बड़े बड़े जो मुनि ऋषि होते थे सत्य युग में। सत्य युग में जो बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि होते थे, लाइक या कोई भी युग में जो साधु सन्यासी, जो बहुत बड़ा बड़ा साधु सन्यासी जो होते, मुनि ऋषि जो होते थे, गौतम बुद्धा, हिंदू रिलीजियन में बहुत बड़े बड़े साधु लोग, सन्यासी लोग, कोई भी रिलीजियन में गॉड ने, भगवान ने चूज किए थे उन लोगों को कि पूरा रेवोल्यूशन ले आने के लिए। ठीक है, बहुत सारा लोग दुनिया में हर रिलीजियन से दीक्षा लेते हैं, किसी ना किसी एज में आके दीक्षा लेते हैं, लेते ही है, टू एंटर इन अ कंप्लीट स्पिरिचुअल फेज ऑफ लाइफ। तो बहुत सारा कुछ हम लोग ऑब्वियसली कर पाएंगे, but we have to have that particular mindset, we have to have that mentality and that positive divineliness, spiritual power within us. सबके अंदर है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ आए हैं मेरे अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अंदर होता है। we have to understand it, we have to feel it, we have to understand it, we have to feel it, and we have to execute everything slowly, step by step. Like me, I believe and I know that, मैं कभी कभी देखता भी हूँ, there are many vloggers who do ऐसे vlog spirituality के ऊपर, भगवान के ऊपर, spiritual everything divine के ऊपर। बहुत सारा vlogs में tarot readings होता है from divine aspects and all this. I observe this, I follow those vlogs and videos. हर लोग, सभी लोग, हम भी और सभी लोग हम ट्राई कर रहे हैं कि जमाना जो भी है, कलयुग जो भी है, जो भी युग है, जो भी जमाना है, everyone we are trying to bring positivity in others life through spirituality, through divineliness, through various good stories, through various good bad experiences, by creating awareness. Okay, so it's be simple, lead a simple life, have dreams, have big ambitions, go ahead in your life. कभी भी ये मत सोचना कि हमारा क्वालिफिकेशन इतना है, या हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, हाउ कैन आई अचीव दिस गोल्स इन लाइफ। डोंट एवर थिंक दिस। You can be at any place, at any time, at any part of this world. You can be at any positions, at any situation. You can be at any position, you can be at any situation of life. स्टार्टअप आप कभी से कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ पाने के लिए, टू गेट एनीथिंग इन लाइफ, वी हैव टू वर्क हार्ड। ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, वी हैव टू वर्क हार्ड। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी शुड नेवर स्टेप बैक। माई अगेन द सेम थिंग आई एम सेइंग कि सोचिए कि कोई इंसान जब जन्म लिया है, जन्म लेने से जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लाइफ उसके सामने बहुत सारा कुछ लेके आ रहा है. ही और शी और एनी जेंडर पर्सन देख रहा है लाइफ को फील कर रहा है, चारों ओर देख रहा है, इंसानों को फील कर रहा है, जान रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ऐसे सब चीज से कांटेक्ट होके इंटरेक्ट करके धीरे 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 उसका एज बढ़ रहा है, उसका फीलिंग्स बढ़ रहा है, उसका लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है. सबके साथ ये होता है. तो एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. अभी मतलब एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. तो एक इंसान बहुत सारा कुछ लाइफ का चैलेंजेस फेस करता है, आगे बढ़ता है. कोई भी इंसान, इट कैन बी ए रिक्शा पुलर, इट कैन बी ए कैब ड्राइवर, इट कैन बी ए रिच पर्सन और इट कैन बी ए रिच पर्सन और मिलेनर, इट कैन बी एनी पर्सन. कोई भी इंसान, कोई भी उम्र का, कोई भी जेंडर का, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है वो, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ता है लाइफ में. लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशंस है, जो बैड मोमेंट्स है, खराब सिचुएशन से हर इंसान स्ट्रगल करके, चैलेंज करके ओवरकम करते हैं. ये तो हम सभी को पता है. तो वाई पीपल शुड अंडर एस्टिमेट, शुड टेक अदर पीपल फॉर ग्रांटेड फॉर एनी रीजन? वाई? हम लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि सामने वाले जो भी इंसान है उनका लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो लाइफ का कौन सा फेजेस, खराब फेजेस से पास किए हैं, उसको कितना रोना पड़ा, उसको कितना कष्ट हुआ, उसको कितना दर्द दुख हुआ, उसको कितना परेशानी हुआ, या उसको दूसरे लोग कितना दर्द दिए हैं, या उसका लाइफ ने उसका कितना एग्जाम लिए हैं, या अभी भी वो कौन सा फेज से पास कर रहा है. वी डू नॉट नो. हम लोग को तो पता नहीं है ये सब कुछ. तो कोई इंसान अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी काम थोड़ा अच्छी तरीके से उसको आ नहीं रहा है, या उसको थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, तो ऑन दैट एस्पेक्ट हम कैसे उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड या बहुत छोटे कर सकते हैं या हंस सकते हैं उसके ऊपर. इंसान, पीपल बहुत अलग अलग होते हैं, इंसान अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग होते हैं. हर इंसान का थॉट्स, माइंड, हर इंसान का मन, हर इस इंसान का भावना, हर इंसान का सोच, हर इंसान का लाइफ का देखने का तरीका, जिंदगी को देखने का तरीका हर अलग 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 होता है. पीपल आर डिफरेंट with different genders, with different mind, mentality, thoughts and everything. So we should not judge people. We should not judge people. And we should not take people for granted. Never. अगर किसी को ये नहीं आता तो ऑब्वियसली उसको वो आता होगा. जो एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, सोचिए कि दुनिया का फेमस फुटबॉल प्लेयर्स जो है, या बहुत अच्छा कोई, हर इंसान किसी ना किसी चीज पे बहुत अच्छा होता है, तो वो गाने पे भी बहुत अच्छा होगा, ये तो कंपलसरी नहीं है. आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि वी शुड लव पीपल, वी शुड रेस्पेक्ट पीपल, कि कौन एस्पेक्ट में, कि उसको जो भी आता है वही उसका गुण है, वही उसका डिवाइन टैलेंट है जो भगवान ने उसको दिया है, जो भगवान ने उसको दिया है. सो सो वी शुड थिंक इन दिस वे. लेकिन बहुत सारा जगहों पे कि ये ऑब्जर्व हमने किए हैं कि दूसरे और इंसान को छोटे दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर, गीगल कर रहे हैं उसके सामने. पीठ पीछे तो बहुत सारा कुछ हो जाते हैं, लेकिन सामने ही वो हंस रहा है, गीगल कर रहा है. एंड ये तो एक पार्ट मैंने बताया. क्यों, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई इंसान का फेस बहुत सिंपल दिखाई दिया, उसका आंख, उसका फेस, उसका बात, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका ओवरऑल अपीयरेंस बहुत सिंपल, बहुत सहज सरल दिखाई दिया,
why people, some people of the society will take this as opportunity and उसको क्यों बिट्रे करेगा, उसको क्यों बिट्रे करेगा, ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन ऑफ द सोसाइटी. बहुत सारा सोसाइटी के लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के पास रहना और उसको सपोर्ट करना. अगर कोई इंसान रास्ते पे साइकिल लेके या स्कूटी या बाइक लेके जा रहा है, वो गिर जाए, अचानक गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए स्लिप करके, पूरा गिर जाए स्कूटी या बाइक या साइकिल लेके, तो आसपास जो भी लोग रहेगा तो वो लोग तो दौड़ के आते हैं, उसको उठाते हैं. ये तो नॉर्मल सिनेरियो है, सभी तो ये करते हैं. तो अगर सभी लोग ये करते हैं तो फिर दूसरे इंसान को छोटे दिखाना, उसका फायदा उठाना, अरे वो बहुत सादा सीधा है. उसको उसको कुछ ना कुछ ऐसे बोल के उसको जस्ट उसको हम मैनेज कर लेंगे. क्यों क्यों कर रहे हैं ये लोग? फेस देके, फेस रीड करके 10 रुपए का चीज क्यों 20 रुपए में ले रहा है? इन सम प्लेसेस ये हो रहा है, सब जगह पे नहीं, इन सम केसेस सम प्लेसेस पे ये हो रहा है. दिस शुड नॉट बी, दिस शुड नॉट बी. तो अभी हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा खुद को, टू बी रफ एंड टफ? आई बिलीव वी शुड नॉट. हाँ, थोड़ा टफ होना है, मन के साइड से थोड़ा टफ होना है. वी शुड बी टफ towards some people, towards some places, time and situation, but changes अलग तरीके से ले आना है हम लोगों को, but not for this kind of few people who take the opportunity of simple people. We should not change totally, we should not change overall just because of some people in the society. It's my again handful request to all people, please be सपोर्टिव, डू सपोर्ट अदर पीपल. मतलब बाइक से गिर गया है या साइकिल से या स्कूटी से गिर गया है, सिर्फ उन लोगों को दौड़ के उठाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं. सिर्फ ऐसा नहीं, ये तो हम करते ही है, ये तो हम करेंगे ही, उठाएंगे ही. उसके साथ साथ सहज सरल इंसान अगर आपको दिखाई दिया, अगर आपको समझ में आ गया कि सामने वाला व्यक्ति या आपके लाइफ में नोन पीपल में कुछ है, कुछ इंसान ऐसे है, कुछ बच्चे लोग, कुछ कोई भी इंसान अगर है, कोई भी जेंडर का, कोई भी एज का, कोई भी जगह का, आपका नोन पीपल में अगर कोई पर्सन है जो बहुत दिखता है, बहुत सिंपल दिखता है, बहुत सरल सीधा, उसका मन भी बहुत सिंपल है, प्लीज प्रोटेक्ट देम, प्लीज डू गाइड देम, प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू लीड देयर लाइफ, जितना पॉसिबल हो पाए. फोर्सफुली नहीं, लेकिन उसको गाइड कीजिए, उसको प्रॉपरली उसको गाइड कीजिए, उसको प्रॉपरली रास्ता दिखाइए. The way I'm sharing and showing it through my vlogs, I feel very very sad, very very upset when I see this in front of my eyes, some people are doing to some other people. सब जगह पे ये नहीं होता है, कुछ जगह पे ये होता है, कुछ जगह का लोग ऐसे होते हैं. ये नहीं होना है. We have to bring many changes surrounding us, in our society, in others' life, in a positive way. In a positive way. I really hate those people who think other people as granted, just for taking for granted. I hate all those people. I hate all those people. Okay. तो किसी भी सिचुएशन पे किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को किसी भी कारण, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, वी शुड नॉट टेक एज ग्रांटेड. It's my again request to elders,
to seniors, to the teachers, I respect them, I do love them, I respect always and do love them, but it's my request to them कि प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके स्टूडेंट्स, आपके जो बच्चे लोग हैं या आपके जान पहचान वाले स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, जो भी अलग इंसान, कोई भी इंसान है, ताकि कोई भी इंसान लो फील ना करे, किसी काम को या किसी सब्जेक्ट को ना एग्जैक्टली परफेक्ट होने के लिए लो फील ना करे, या फिर डिप्रेस फील ना करे, या फेलियर हम हार गए ऐसे फील ना करे. It is again the responsibilities and duties of us, of me, of many other people, of the teachers, seniors and everyone कि इसको ध्यान रखने के लिए कोई लो फील ना करे, कोई ऐसा फील ना करे कि other people are taking me as granted. No. And it's my handful request to those people जो लोग दूसरे इंसान का फायदा उठाता है, अपॉर्चुनिटी लेता है उसका सहज सरल मन, हृदय और एटीट्यूड से, टू दोज पीपल हु टेक द अपॉर्चुनिटी, कि हैंडफुल रिक्वेस्ट आई एम डूइंग, प्लीज डू नॉट मिसयूज पीपल, प्लीज डू नॉट मिसयूज दिस सहज सरल पीपल. अगर आप करेंगे इट विल कम बैक टू यू अगेन वन डे. अगर कोई खराब इंसान किसी इंसान का अपॉर्चुनिटी लेके उसको मिसयूज करता है, उसको बिट्रे करता है, उसका नुकसान करता है किसी ना किसी तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन वाज वेरी सिंपल, सहज एंड सरल फ्रॉम माइंड एंड सोल एंड बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अपीयरेंस, उस खराब इंसान का भी एक दिन आएगा, बहुत जल्द ही आएगा, कि उसको भी कोई ऐसे यूज करेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा. एवरीथिंग कम बैक्स. Whatever we do in the same way it's come backs. Whatever we do in the same way it's come backs. ये व्लॉग मेरा बहुत सेंसिटिव है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव व्लॉग. आई प्रे टू माँ वैष्णवी, आई प्रे टू माँ नवदुर्गा, आई प्रे टू हर देव देवी ऑफ एवरी रिलीजियन की सोसाइटी, दुनिया, पृथ्वी बहुत अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए, और लोग बहुत समझदार हो जाए, सेंसिटिव हो जाए. एक इंसान दूसरे इंसान का इमोशंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस अच्छी तरीके से समझ पाए, हैंडल कर पाए और डील कर पाए. जय मां वैष्णवी, हर हर महादेव.